Resume is your first step introduction to get you an interview. It doesn't guarantee you a job, but it actually guarantees you an interview. It is a very important document. क्या होता है, जैसे आप पहली बार किसी से मिलने जाते हैं तो you always think about what to wear, हम कैसे लग रहे हैं, हमें एकदम टिप टॉप लगना है, because that time you are trying to create an impression. Resume writing is the same process because you're trying to create an impression on somebody who doesn't know you. जो आपके बारे में नहीं जानते हैं, जिनको आपको बताना है कि आप कौन हैं, तो आप कैसे बताएंगे? That is one page document which speaks about you. So it is very important process. It's not a casual thing कि एक डॉक्यूमेंट उठा लिया, नाम ही तो लिखना है, स्किल्स बता दिए, भी इंजीनियरिंग डिग्री है, MBA डिग्री है, that's it. No. Resume is a very important document. अब now that we have understood that this document is very important, so इसके आगे हमें ये समझना ज़रूरी है कि उसमें लिखना क्या क्या है और क्या लिखना है प्लस कैसे लिखना है. So basically if you want to know that what are the important sections of a resume, very simple points. One is obviously objective. What is your objective in life? Your education background, your experience if you have any, और हो सकता है फ्रेशर हैं तो आपके पास एक्सपीरियंस नहीं होगा, which is fine. And आपके स्किल्स कैसे मैच करते हैं जिस जॉब के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, प्लस आपके थोड़े से पर्सनल डिटेल्स and maybe your hobbies, and if you want to provide some references. So these are very common sections that a resume should have. अब ये भी बहुत सिंपल साउंड कर रहा है कि ये 5 सेक्शंस ही तो होते हैं, ठीक है, बट अब उसमें आई विल टेल यू हाउ इम्पॉर्टेंट इट इज़ टू क्राफ्ट दीज सेक्शंस. Why? Because like I said in the beginning, this is the first impression that you're creating in front of someone who is going to give you a job, right? आजकल आपने देखा होगा रेज्यूमेज में बहुत सारे लोग अपना फोटो डालते हैं. So a lot of people ask me if it is a good idea to put a photo or not. Now this is a very subjective choice. There is no right or wrong answer to this question. फोटो डाल भी सकते हैं और नहीं भी. So I'll tell you pros and cons of both. If you decide to put a photo on your resume, ensure that it is a professional photo. I mean, you can obviously have lot of photos in your camera which are taken on your holidays. से आपका beach background है या mountain background है, but आप ये ध्यान रखिए आप ये फोटो रेज्यूमे पे डाल रहे हैं जो कि एक प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट है. So if you decide to actually put a headshot on your resume, please ensure it is a properly taken headshot. When I say properly taken, a professional look doesn't have to be a coat tie look. You can still wear a normal shirt which looks professional but still has a good background, right? क्योंकि मैं एज अ रिक्रूटर ये नहीं जानना चाहती हूँ आप ट्रैवलर हो कि नहीं, आप किसी बीच वाले प्लेसेस पे जाते हो क्या, डू यू लाइक माउंटेन्स और नॉट. आई डोंट वांट टू नो दैट इन योर फोटो. व्हेन आई सी योर फोटो ऑन योर रेज्यूमे एज अ रिक्रूटर, आई वांट टू सी हाउ सीरियस यू आर फॉर दिस जॉब. अब इसका डाउन साइड, अगर आप फोटो नहीं लगाते हैं तो कोई डाउन साइड एक्चुअली है नहीं. ओनली थिंग इज इफ आप फोटो लगाते हो तो उसमें क्या होता है, अगर मैं एज अ रिक्रूटर आई एम गेटिंग 100 रेज्यूमेज इन अ डे, राइट. मुझे अगर कोई आपका रेज्यूमे पसंद आ रहा है तो इफ देयर इज अ फोटो देयर इज अ रिकॉल फैक्टर फॉर मी. आई नो विच पर्सन दिस इज. इफ आई एम मीटिंग 100 people in a day, especially for freshers, there is a campus drive. So I am going to meet a lot of people that day. So if you have a photo on your resume, I'll remember you. So it's a good point to have a photo, and like I said, it has to be a good photo. अब जैसे मैंने कहा कि ये तो प्रोफेशनल फोटो और ये सब, बट ऐसे एरियाज भी होते हैं प्रोफेशन के, जैसे वेब डिज़ाइनर या और प्रोफेशंस होते हैं जैसे एक्टिंग. ऐसे इसमें डेफिनेटली आप अच्छे फोटोज़ लगा सकते हैं जिसमें आपका एक्चुअल वो कैरेक्टर दिख के आएगा कि यू आर अ डिज़ाइनर, यू आर अ आर्टिस्ट और यू आर एन एक्टर. सो ऑब्वियसली वहाँ पे अगर आप सूट और टाई का फोटो लगाओगे इट डजंट मैच. So point here is, if you are choosing to put a photo on a resume, please remember what kind of profession you are in and what kind of job you are applying to. So that is point number one, photo. Now coming to
पर्सनल डिटेल इनिशियली, जो आपके कॉन्टैक्ट डिटेल्स होते हैं ऑन द रेज्यूमे. Lot of times, in fact, I think majority of the times I've seen so many resumes in my life. हर resume पे नाम होता है, of course, important. Phone number होता है, very important. Email ID, of course, you need that. But why do you think you have to put a postal address on your resume? Just think about it. No point. I'm not going to, send you a Diwali gift, right? I don't need your postal address. What I need to know is where you live in the country. अब जैसे हो सकता है कि आप किसी जॉब को इंदौर में अप्लाई कर रहे हैं, बट यू लिव इन से हैदराबाद, सो देन यू हैव टू मेंशन योर लोकेशन. दैट इज इंपॉर्टेंट. आई नीड टू नो वेयर यू बिलोंग टू, बट आई डोंट नीड टू नो योर पोस्टल एड्रेस, बिकॉज मेरे लिए उस मोमेंट पे व्हेन द रेज्यूमे फेज पे मेरे लिए वो इम्पॉर्टेंट नहीं है. सो यू कैन अवॉइड मेंशनिंग योर कंप्लीट पोस्टल एड्रेस. ऑल यू कैन से इज नेम, नंबर, ईमेल आईडी एंड योर लोकेशन. दैट्स इनफ. इससे फ़ायदा ये होगा, आपकी स्पेस भी बचेगी जो आपका हेडर स्पेस है रेज्यूमे डॉक्यूमेंट का, राइट. कमिंग टू ऑब्जेक्टिव, अ वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन ऑफ द रेज्यूमे. अब ऑब्जेक्टिव में मैंने देखा है दैट लॉट ऑफ पीपल, मेजॉरिटी ऑफ द पीपल इन फैक्ट, व्हाट दे डू इज दे कॉपी पेस्ट द ऑब्जेक्टिव. दिस इज अ वेरी कॉमन प्रैक्टिस, राइट. या तो आप अपने फ्रेंड्स का ऑब्जेक्टिव कॉपी कर लेते हैं, या आपका जो हमारा परमानेंट फ्रेंड है गूगल, उससे कॉपी करते हैं. So it is fine if you're taking ideas from, say, Google or your friend's resume, but I would suggest do not copy paste the entire objective, because आप बात समझिए, objective का मतलब क्या होता है. It is basically trying to tell you what you really want to do. That is explaining your intent. So it should be in your own words. Or objective doesn't have to be a longish one. आप कोई भी रेज्यूमे उठा के देखिए, एग्जाम्पल में कम से कम 4, 5, 6 लाइन का ऑब्जेक्टिव होता है. इफ आई हैव टू रियली टेल यू द ट्रूथ एज अ रिक्रूटर, इट रियली इरिटेट्स अस, ट्रस्ट मी. क्योंकि क्या है, हम यहाँ पे ऐसे राइटिंग का कंपटीशन नहीं कर रहे हैं. हम आपसे ये नहीं बोल रहे हैं कि आप एक नॉवल लिखिए या ऐसे लिखिए, और हम आपको ये भी नहीं बोल रहे हैं कि शशि थरूर लैंग्वेज में आप ऑब्जेक्टिव लिखिए, राइट. इट हैज़ टू बी अ करेक्ट इंग्लिश ऑफ कोर्स, बट देन इट हैज़ टू बी अ सिंपल इंग्लिश ऑब्जेक्टिव. 4-5 लाइन का ऑब्जेक्टिव जरूरी नहीं है. यू कैन सिंपली स्टेट योर ऑब्जेक्टिव इन लाइक 1 or 2 लाइन्स. दैट्स फेयर इनफ. बट द होल पॉइंट हियर इज प्लीज डू नॉट कॉपी पेस्ट. अगर कहीं आपका रेज्यूमे मेरे सामने आ गया एज अ रिक्रूटर, आई एम श्योर टू आस्क यू टू एक्सप्लेन द ऑब्जेक्टिव, एंड इफ यू आर नॉट एबल टू एक्सप्लेन इट, आप सोचो फर्स्ट इंप्रेशन क्या पड़ेगा. सो प्लीज डिफाइन योर ऑब्जेक्टिव, थिंक अबाउट इट. आप इस जॉब को अप्लाई कर रहे हो, आपका ऑब्जेक्टिव क्या है. You can always write objective in one line saying I want to work with this company because I think my skills match with the job description. Fair enough, right? So please keep it simple, small and correct English. Do not copy paste. Now coming to what exactly you should write in your resume after objective. तो obviously educational background देना ज़रूरी है. स्पेशली व्हेन फ्रेशर हो, अगर आप फ्रेश ग्रेजुएट हो तो आपके पास बहुत सारा कंटेंट नहीं होता है टू राइट अबाउट योर एक्सपीरियंस, बट आपका एजुकेशन बैकग्राउंड इज इम्पॉर्टेंट एट दिस पॉइंट. सो एज अ फ्रेशर यू शुड ऑब्वियसली मेंशन योर एजुकेशनल बैकग्राउंड इन द फर्स्ट सेक्शन ऑफ द रेज्यूमे. और उसमें भी आपको ये ध्यान रखना है कि आप लेटेस्ट डिग्री जो आपकी है वहाँ से शुरू करें. मतलब ऐसे नहीं कि आप पहले 10th बता रहे हो, फिर 12th बता रहे हो, और फिर क्योंकि 10th-12th तो आपने किया ही होगा, राइट, उसके बाद ही आप ग्रेजुएशन करोगे. इट्स अ कॉमन सेंस. सो बेटर टू स्टार्ट विद द लेटेस्ट डिग्री. हो सकता है आप BE किया हो या BSc किया हो, जो ग्रेजुएशन किया हो उसके बाद आपने पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया हो. सो इट्स बेटर टू स्टार्ट विद योर लेटेस्ट डिग्री. सो ऑब्जेक्टिव हो गया, आपका डिग्री का सेक्शन आ गया. अब डिग्री के सेक्शन में प्लीज एंश्योर to write your marks or grade or percentage also. It makes a lot of difference. Sometimes क्या होता है, हम भूल जाते हैं वो लिखना, या कई बार ये भी होता है कि हमारे कहीं किसी एक डिग्री में या एक लेवल पे हमारे परसेंटेज थोड़े शायद हमें कम लगते हैं, तो हम स्किप कर जाते हैं वो लिखना. Don't do that. You should always mention because see, that's the whole point of mentioning the educational background. Correct? So डिग्री का नाम, कॉलेज या यूनिवर्सिटी का नाम, और आपकी ग्रेड या परसेंटेज. अब इसमें क्या होता है, आई विल टेल यू अ वेरी फनी फैक्ट. लॉट ऑफ टाइम्स व्हेन यू आर नॉट पेइंग अटेंशन
while creating the resume, आप ऊपर नीचे भी लिख देते हो कई बार, और ऐसा होता है, इट्स अ फैक्ट। मेरे पास ऐसे रेज्यूमेज आए हैं जहाँ पे बंदे ने ये भी लिखा है कि पहले उसने 12th किया और उसके बाद उसने 10th किया। तो आई वाज लाइक, होता होगा भैया, ऐसी कोई होती होगी स्कूल यूनिवर्सिटी जो पहले 12th कराता है फिर 10th कराता है, राइट? सो प्लीज़ इंश्योर कि आपका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर एकदम सही है, बिकॉज यू कैन नॉट डू दिस मिस्टेक, राइट? वंस दिस इज डन, नाउ वी कम टू द एक्चुअल बॉडी पार्ट ऑफ रेज्यूमे, राइट? रेज्यूमे डॉक्यूमेंट। अब यहाँ पे अगर आप फ्रेशर हो तो आपके पास लाइक ऐसे बहुत कंटेंट नहीं होगा एक्सपीरियंस का, बट आपके पास स्किल सेट है बताने के, आपका इंटरेस्ट एरिया है। सो व्हेन यू आर क्राफ्टिंग दिस सेक्शन ऑफ द डॉक्यूमेंट, प्लीज एंश्योर दैट यू हैव रेड द जॉब डिस्क्रिप्शन करेक्टली, बिकॉज दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सिर्फ एक डॉक्यूमेंट बना के आप हर जगह नहीं भेज सकते। आपको लगेगा क्या है उसमें, मेरे स्किल सेट भी वही रहने वाले हैं, मेरा एजुकेशनल बैकग्राउंड भी वही रहने वाला है, ऑब्जेक्टिव मोर और लेस तो सेम ही रहेगा, तो मैं अलग अलग रेज्यूमे क्यों ही बनाऊं? उससे क्या होता है, हर कंपनी का जॉब डिस्क्रिप्शन अलग होता है, आपके स्किल सेट वही हो सकते हैं, बट देन यू हैव टू मोल्ड योर रेज्यूमे अकॉर्डिंग टू द जॉब डिस्क्रिप्शन दैट कंपनी हैज क्रिएटेड। उससे क्या होगा, आपको पता रहेगा आप किस चीज़ के लिए अप्लाई कर रहे हो, एंड देन while creating your resume you also get the ideas and pointers to speak in the interview, right? So हर कंपनी का जॉब डिस्क्रिप्शन अलग रहेगा, उनकी रिक्वायरमेंट अलग रहेगी, उनके हिसाब से आपका रोल अलग रहेगा, and the moment you create a resume basis that you will also know what to speak in the interview. So that helps two ways. So you have to ensure that you have read the job description clearly and आपका जो content है वो JD के हिसाब से बना हुआ है। रिक्रूटर्स के लिए एक और चीज़ हमको अच्छी लगती है, जब आपका रेज्यूमे जेडी से मैच करता है तो हमें भी इजी होता है आपका रेज्यूमे पिक करना, प्लस वी नो दैट यू आर टेकिंग दिस सीरियसली, वी नो दैट यू आर गोइंग थ्रू द जेडी, एंड दैट क्रिएट्स योर फर्स्ट इंप्रेशन, राइट? अब रिक्रूटर्स के कुछ पेट पीव्स होते हैं, ठीक है? रेज्यूमे पढ़ने के पहले, रेज्यूमे जब हमारे पास आता है से लेके रेज्यूमे पढ़ने तक एंड सिलेक्ट करने तक, वी वांट एरर फ्री रेज्यूमेस। हमको गलतियां पसंद नहीं होती हैं, बिकॉज आई एम रिपीटिंग दिस अगेन एंड अगेन, रेज्यूमे इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, और अगर आप अपने इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट में गलती कर रहे हो तो क्या आप सीरियस हो जॉब के लिए? इट्स लाइक आप सोचो आपके बर्थ सर्टिफिकेट में गलतियां हैं, विल यू बी ओके विद इट? आप जाओगे, करेक्ट करवाओगे, सरनेम की स्पेलिंग गलत है, डेट ऑफ बर्थ गलत है, अरे आपने तो मंथ ही चेंज कर दिया हमारा। वाई? बिकॉज यू आर टेकिंग इट सो सीरियसली, इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू। सिमिलरली द रेज्यूमे इज इम्पॉर्टेंट फॉर यू एंड वी शुड नो दैट इट इज़ इम्पॉर्टेंट। वो आपका रेज्यूमे कम्युनिकेट करता है जब आपका रेज्यूमे एरर फ्री होता है। सो प्लीज़ एंश्योर दैट देयर इज़ नो मिस्टेक। आपके खुद के नाम की भी मिस्टेक कई बार होती है, हमारे पास ऐसे भी रेज्यूमे आते हैं जैसे नाम शुरू होता है, फॉर एग्जाम्पल किसी का नाम है अंकिता बख्शी पाटनकर, ठीक है? सो वाई? बिकॉज ऑब्वियसली शी इज गॉट मैरिड नाउ, तो शी हैज़ अ एडेड सरनेम। अब इस केस में फॉर एग्जाम्पल शी स्टार्ट्स विद अ रेज्यूमे सेइंग अंकिता बख्शी एंड एट द एंड व्हेन पर्सनल डिटेल्स कम शी सेज अंकिता पाटनकर। अब मेरे लिए इट इज़ सो कन्फ्यूजिंग कि जब मैंने शुरू किया रेज्यूमे पढ़ना तो किसी बख्शी का था, और जब मैं एंड ऑफ रेज्यूमे आई तो वो पाटनकर का हो गया। तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि एक बंदी है या दो बंदियाँ रेज्यूमे अपना भेज रही हैं। यू नो व्हाट आई एम सेइंग? सो द पॉइंट हियर इज देयर आर पीपल हु एक्चुअली टेंड टू मेक मिस्टेक्स इन देयर ओन नेम्स, विच इज़ अ ब्लंडर। सो प्लीज़ अवॉइड मेकिंग मिस्टेक्स इन योर ओन नेम एट लीस्ट। वहाँ से लेके पूरा एंड तक प्लीज़ डू नॉट मेक एनी मिस्टेक्स। इट शुड बी एरर फ्री, इट शुड बी गुड इंग्लिश। डू नॉट ट्राई टू राइट फैंसी इंग्लिश, प्लीज़ राइट गुड इंग्लिश। तो रेज्यूमे आपका एरर फ्री होना चाहिए, प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड होना चाहिए, जेडी के हिसाब से होना चाहिए, आपका ऑब्जेक्टिव शुड बी मीनिंगफुल। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको बिल्कुल ध्यान रखने ही हैं। यू कैन नॉट स्किप दैट, यू कैन नॉट, इट्स अ नॉन नेगोशिएबल। अब एक लास्ट पॉइंट, वेरी स्मॉल पॉइंट ऐसा लगेगा सुनने में, बट इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट येट अगेन। आप कोई भी डॉक्यूमेंट सेव करते हो तो आप उसका नेमिंग कन्वेंशन कैसे रखते हो, राइट? जैसे अगर आपने किसी चीज़ का स्क्रिप्ट लिखा है तो आप उसका नाम कैसे रखोगे? उस स्क्रिप्ट का नाम लिखोगे और डॉक्यूमेंट का नाम स्क्रिप्ट लिखोगे, राइट? बिकॉज after some time when you want to open that document or you want to search that document, you want to know what you are searching for. Similarly, आप resume कैसे सेव करते हो?
बहुत फैंसी टर्म्स होते हैं, मैंने देखा है कि स्पेशली फ्रेशर्स कैसे सेव करते हैं, कूल डूड इंजीनियर 2023. It's a very common practice to save your resume in like fancy names, क्योंकि आपको लगता है it's cool. No. अब आप सोचो, ऐसे 100 रेज्यूमे मेरे पास आ रहे हैं जिसमें किसी का कूल डूड नाम लिखा है, इंजीनियर रॉक्स या ऐसे नाम है. हाउ विल आई आइडेंटिफाई हु इज दिस पर्सन, राइट? मुझे नहीं पता आप कूल डूड हो कि नहीं हो, मुझे नहीं जानना है, बट मुझे आपका नाम जानना है. बेस्ट प्रैक्टिस इज टू सेव योर नेम. इफ आई हैव टू सेव माई रेज्यूमे, आई विल से नुपुर फाटक. बट आप बोलोगे आप इसके वर्जन्स बनाओगे, आप इसके अलग अलग अपडेटेड डॉक्यूमेंट बनाओगे. अग्रीड. उसके लिए आप क्या कर सकते हो, इफ़ यू आर मेकिंग वर्जन्स, तो अब उसमें भी लोग क्या करते हैं, नुपुर फाटक फाइनल, फर्स्ट वर्जन हो गया. फिर आपने कुछ चेंज किया, फिर आप क्या बोलोगे, नुपुर फाटक फाइनल फाइनल. फिर आप कुछ और चेंज करते हो, आपने कोई हॉबी ऐड कर दी या आपने कोई सर्टिफिकेशन ऐड कर दिया, फिर आप क्या करोगे, नुपुर फाटक फाइनल फाइनल एकदम फाइनल. सो ऐसे भी रेज्यूमे आते हैं, आई एम नॉट किडिंग. बट ऐसे वक्त आपको क्या करना है, एक तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट द सबसे ईजी ऑप्शन हियर इज देयर मे बी लाइक 7-8 वर्जन्स ऑफ योर रेज्यूमे. व्हाट यू कैन डू इज जस्ट कीप द फाइनल वन. जो पुराने वर्जन्स हैं, क्रिएट अ सेपरेट फोल्डर एंड पुट ऑल द वर्जन्स इन दैट. तो आप साइड में हट गए, आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं है. द फाइनल वर्जन इज द ओनली वर्जन दैट यू शुड यूज. फिर भी आपको अगर कुछ एक नॉमेनक्लेचर डालना है, आपको कोई साइन डालना है कि ये फाइनल है, एक पता कैसे चलेगा. द बेस्ट यू कैन डू इज से नुपुर फाटक. अगर आप इस सितंबर में रेज्यूमे बना रहे हो या अक्टूबर में बना रहे हो, फॉर एग्जाम्पल नुपुर फाटक अक्टूबर 23 सूट्स फाइन. द पॉइंट हियर इज, वन, यू आर नॉट नेमिंग फैंसी नेम्स. दूसरा, जब मेरे पास इतने सारे रेज्यूमे होते हैं डेटाबेस में, तो मुझे अगर आपके नाम से वो डॉक्यूमेंट सेव्ड है तो मुझे वो आसानी होगी आपका रेज्यूमे ढूंढने में. आप ये सोचो, मेरे लिए इट्स सो ईजी, प्लस आई विल रिमेंबर योर नेम again. So it's a recall factor. So basically, summing up, what all we need to remember while creating a resume is, it has to be crisp. If you're using a photo, it has to be a professional photo. Objective has to be very, very lean. It has to be a structured resume. It has to be error free. The name should be very crisp and apt. It should be your name on the document, and then it becomes a very, very good resume that you are sending to the recruiter. I hope this was helpful, and if you have any questions, I would be happy to answer. You can comment in the below section and ask me your questions.